اچھا جی، گڈ ایوننگ، السلام علیکم. کیا حال چال ہیں آپ کے؟ میری پچھلی ویڈیو کو ایز ایکسپیکٹڈ جتنی پذیرائی ملنی ہوتی ہے اتنی ہی ملی. اچھا کوئی بات نہیں، لیٹس ٹاک اباؤٹ ڈفرنٹ تھنگس. اوکے، تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود می یو گائز. اور جو میرے خاص اپنے ویورز ہیں وہ میرے ویورز ہیں، اور ان کی انکریجمنٹ ہی میرے لیے کافی ہے. اچھا، 2-3 دن پہلے میرے ایک دوست بھی ہیں اور میرے شاگرد بھی ہیں، انہوں نے مجھے ٹیکسٹ کیا کہ سر کچھ لیڈرشپ پہ بات کریں. اب دیکھیں، a lot is being said and talked about leadership. LinkedIn پہ چلے جائیں، کتابوں پہ چلے جائیں، یوٹیوب پہ چلے جائیں. تو میں نے اس کو کہا، میں نے کہا یار لیڈرشپ پہ ویڈیو بنانا جو ہے نا وہ تھوڑا سا مشکل کام ہے. حالانکہ میں لیڈرشپ پڑھاتا رہا ہوں، بہت دیر تک پڑھاتا رہا ہوں اور اب بھی پڑھاتا ہوں، اور مجھے اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن میرے کانسیپٹ جو ہیں وہ گریجولی جو ہے وہ لیڈرشپ کے بارے میں تھوڑے ڈفرینٹ ہو گئے ہیں. آج کی دنیا میں اگر ہم دیکھیں تو a lot is being said, a lot is being talked about leadership. اور ہر بندہ جو ہے وہ لیڈر بننے کی خواہش بھی رکھتا ہے اور کوشش بھی کرتا ہے. لیکن میری اپنی جو ذاتی اوپینین ہے اس میں ایک چیز جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. وہ یہ ہے کہ یہ بڑا ایک عجیب سا فنامنا ہے کہ میں لیڈر بننا چاہتا ہوں. اگر میں لیڈر بننا چاہتا ہوں تو میں اگر لیڈر بن جاتا ہوں تو وہ باقی کے لوگ جو میرے آس پاس ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ پھر وہ شاید میرے فالوورز ہوں گے. لیکن لیڈرشپ کی جو کوالٹیز ہیں ان پہ بات کرنے سے پہلے میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر بندہ ہی جو ہے وہ لیڈرشپ کو پڑھے ضرور، لیکن یہ نہ کوشش کریں کہ میں لیڈر بن سکتا ہوں. لیڈر بننے کی کوشش کرنا جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ وقت کا جو ہے وہ ضیاع ہے. اب ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ میرے ایکسپیرینس کی وجہ سے، میرے آبزرویشنس کی وجہ سے، میرے انٹلیکٹ کی وجہ سے، یا میرے انٹیلیجنس کی وجہ سے، یا میری ای کیو کی وجہ سے میں چیزوں کے بارے میں میری ایک سرٹن اوپینین ڈیولپ ہو جاتی ہے، اور میں چیزوں کو ایک سرٹن اینگل سے دیکھنا شروع کر دیتا ہوں جو کہ دوسرے لوگ نہیں دیکھ سکتے. یہاں میں سے مراد میں نہیں ہوں، اٹ کوڈ بی اینی بڈی since we are talking about leadership. So it could be somebody who is going to be a leader, and this very person is a person who sees things differently than the others. So to me, a leader is a person who can see things which others cannot see. مجھے ایسا لگتا ہے کہ، اور اسی کو ویژن بھی ہم کہتے ہیں، کہ ایک بندہ جو ہے، اب 100 لوگ اکٹھے کام کر رہے ہوتے ہیں اور ایک بندہ جو ہے وہ ایسی چیزیں دیکھتا ہے جو کہ دوسرے نہیں دیکھ سکتے. اینڈ دس ابلٹی آف سیئنگ دی انویزیبل in my opinion is the essence of leadership. And when this thing is recognized by others, like ایک stage آ جاتی ہے جہاں پہ کہ لوگ یہ اس چیز کو ایکنالج کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے وہ چیزیں دیکھ سکتا ہے، اور نہ صرف دیکھ سکتا ہے کہ بلکہ وہ چیزیں کر بھی سکتا ہے یا کروا بھی سکتا ہے جو ہم نہیں کر سکتے. تو پھر اس بندے کی جو ہے وہ اکنالجمنٹ ایز اے لیڈر جو ہے وہ آنی شروع ہو جاتی ہے، اور لوگ اس کو اپنا لیڈر مان لیتے ہیں. اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جس وقت آپ کو خدا نے ڈفرینٹ آنکھیں دی ہوتی ہیں، ڈفرینٹ دماغ دیا ہوتا ہے، ڈفرینٹ پرسپیکٹیو، ڈفرینٹ میکنزم ہوتا ہے آپ کو چیزوں کو دیکھنے کا. اینڈ دیٹس وائی یو سی تھنگس وچ ادرس کین ناٹ ڈو. اب لیڈر بننے کے طریقے تو بہت سارے ہیں، مزاحیہ طریقے بھی ہیں، اچھے طریقے بھی ہیں، سیریس طریقے بھی ہیں. آپ الیکٹ ہو سکتے ہیں ایز اے لیڈر. پاکستان میں آپ کو پتہ ہے الیکٹڈ اور سلیکٹڈ والا بڑا رول ہے. تو یو کوڈ بی elected as a leader, or you could be selected as a leader, or you could work it up, or you could use people to become a leader, or otherwise people select you as a leader. So I think that's the best thing to become a leader, when people start rallying around you and people start acknowledging the fact that you are seeing things which they are unable to see, اور ایسی آپ وہ کام کر سکتے ہیں جو دوسرے نہیں کر سکتے، یا آپ لوگوں سے وہ کام کروا سکتے ہیں جو دوسرے نہیں کروا سکتے. تو میرا خیال ہے کہ یہ وہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ لیڈرشپ کے لیے جو پہلی کوالٹی ہے، سیئنگ دی انویزیبل از دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. ایک وقت تھا کہ جب میں لیڈرشپ ٹریننگز کرتا تھا تو ایک سلائڈ میرے پاس ہوتی تھی جس کے اندر کوئی 500-700 کے قریب
वाटर मार्क हुई क्वालिटीज़ लीडरशिप की होती थी और उनके ऊपर एक क्वालिटी उभर के आती थी, दैट इज़ द इन्फ्लुएंस, द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर्स इज कॉल्ड लीडरशिप. दैट्स व्हाट आई यूज्ड टू टीच. But not anymore. I think the first thing is for a leader is to see the invisible. First thing is to make sure that you see things which others cannot see. इसके अलावा और क्या क्वालिटीज़ हो सकती हैं लीडरशिप की? मैं समझता हूँ कि जब आपको एज ए लीडर सेलेक्ट कर लिया जाता है, क्योंकि आप ऐसी चीज़ें देख रहे हो, लोग ये समझते हैं या आप लोगों को ये इम्प्रेशन दे रहे होते हैं कि मुझे वो चीज़ें नज़र आती हैं या मैं मुस्तकबिल देख सकता हूँ, आई कैन सी द फ्यूचर, या आई हैव अ सर्टेन विजन एंड पीपल डू नॉट हैव दैट. So once people get this impression, either it is the right impression or it's the wrong impression, but it's the impression. But once you sit on that particular place, जहाँ के कि आपको जिस कुर्सी पे बिठा दिया जाता है, जिस स्थान पे आपको बिठा दिया जाता है, तो फिर जो पहली जॉब जो आपकी एज ए लीडरशिप है, जो क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए इनविजिबल को देखने के बाद भी, कि यही है कि आपको चीज़ें दूसरों के मुकाबले में ज़्यादा क्लियरर नज़र आनी चाहिए और दूसरों के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर नज़र आनी चाहिए, ताकि आप वो एक्शन ले सकें जो दूसरे नहीं ले सकते या दूसरों से वो काम करवा सकें. और जो दूसरी चीज़ जो मुझे समझ में आती है वो ये है कि लीडरशिप के अंदर जो लीडर होता है, हिज सेंस ऑफ लाइफ इज़ बियॉन्ड हिमसेल्फ. वो अपने लिए चीज़ें नहीं कर रहा होता, अपने बेनिफिट के लिए चीज़ें नहीं कर रहा होता, अपनी एक्नॉलेजमेंट करवाने के लिए नहीं कर रहा होता, अपनी प्रोटेक्शन के लिए, अपनी प्रोजेक्शन के लिए नहीं कर रहा होता. उसकी वर्ल्ड जो है, वो उसकी जो दुनिया होती है, वो अपने से ऊपर की दुनिया होती है. वो आगे देख रहा होता है, वो अपने लिए नहीं जी रहा होता, वो उस सोसाइटी के लिए जी रहा होता है, उस ग्रुप ऑफ पीपल जो उसको फॉलो कर रहे होते हैं उन लोगों के साथ उनके लिए काम कर रहा होता है, और उसके ऑब्जेक्टिव्स में उसकी अपने लिए कुछ भी नहीं होता. Why? Because people are following him and people are thinking that he is the one who is setting the direction and the dimensions and the mechanism to get over where everybody wants to get. और यही वो वजह है कि सेल्फ सेंटर्ड लोग जो हैं वो अपेरेंटली एक्टिंग करके, लिबादा ओढ़ के, मास्क पहन के लीडर्स तो बन जाते हैं, लेकिन दे आर नॉट एक्चुअली लीडर. वाई? बिकॉज देयर सेंस ऑफ लाइफ इज़ नॉट बियॉन्ड देमसेल्व्स. तो इन द एंड क्या डिटरमिन होता है? इन द एंड यही डिटरमिन होता है कि आप अपने आप को क्या एज व्हाट काइंड ऑफ पर्सन आप अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं. आप अपने आप को एज ए पर्सन हु इज सेल्फ सेंटर्ड, ईगो सेंटर्ड, बट अ लीडर, और you are someone who doesn't think that he is a leader, but at the same time your sense of life is beyond yourself. ये आइडेंटिटी जो है ये ही डिटरमिन कर देगी कि आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ क्या है. तो यहाँ तक तो हमने 2-3 बातें कर ली जो मेरी समझ में आती हैं. एक तो ये कि आप इनविजिबल को देख सकते हैं. दूसरी ये है कि जब आपको वो कुर्सी या वो स्थान दे दिया जाता है तो फिर आपकी जिम्मेदारी में आ जाता है कि आप चीज़ों को दूसरों से ज़्यादा बेहतर देखें. और तीसरी चीज़ ये है कि आपकी जो अपनी प्रेफरेंसेस होती हैं वो उनकी कोई वैल्यू नहीं होती. आप दूसरों के लिए देख रहे होते हैं, दूसरों के लिए जी रहे होते हैं, दूसरों के लिए काम कर रहे होते हैं. एंड दैट्स वेयर थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो कि जिसको मैं समझता हूँ कि जो एज ए लीडर जो है वो क्वालिटी भी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, to do things for the well-being of the group, the society, the community, and the part of the world we are living, and the entire world. सारी दुनिया के लिए जो कुछ कर रहे हैं, या उन लोगों के लिए जिनके साथ आप अटैच्ड हैं, जिस टीम को आप लुक आफ्टर कर रहे हैं, जिस कम्युनिटी में आप रह रहे हैं, जो सोसाइटी का आप हिस्सा हैं, उन सब लोगों के लिए भी आप जो काम कर रहे हैं वो इन दी एंड जो है वो उस सोसाइटी की या उस सेगमेंट की वेल बीइंग के लिए हो. लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. जो कुछ भी हम करते हैं एज एन एक्टिविटी, उस किसी भी एक्टिविटी का जो बेसिक पर्पस होता है, जो ऑब्जेक्टिव होता है, वो होता है कि हम उसमें से कुछ प्रोड्यूस करना चाह रहे होते हैं. वो चाहे हम एक सुई बना रहे हों, वो चाहे हम एक जहाज़ बना रहे हों, चाहे हम एक कंप्यूटर बना रहे हों, वो एक मेडिसिन बना रहे हों, किसी से मोहब्बत कर रहे हो, फैमिली सेटल करने की कोशिश कर रहे हो, बच्चों को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, वट एवर वी आर डूइंग एज एन एक्टिविटी,
it has a certain purpose attached to it, and the end result of that purpose is the well-being. It could be well-being of the people you're working with, it could be well-being of your children, it could be well-being of your parents, it could be well-being of of your friends, it could be well-being of the society, the community, the whole mankind. आप उठा के देख लें, हिस्ट्री को उठा के देख लें, हिस्ट्री देखें तो आपको बिल्कुल क्लियरली चीज़ें नज़र आएंगी कि लोग हर वक्त किसी ना किसी वक्त में जो कुछ भी करते रहे वो वेल-बीइंग के लिए करते रहे. अब खैर थोड़ी सी हमारी प्रेफरेंसेस चेंज हो गई, हमने लीडरशिप के बारे में ज़्यादा बात करनी शुरू कर दी और वेल-बीइंग के बारे में कम करनी शुरू कर दी बात. अब हम जो है वो शेयर होल्डर्स की वेल-बीइंग के बारे में ज़्यादा बात करते हैं. बट एनीवे, लेट्स कम टू द पॉइंट ये है कि जो भी हम एक्टिविटी करते हैं वो हम एक्टिविटी का पर्पस जो होता है वो वेल-बीइंग होती है. वो चाहे हमारी अपनी वेल-बीइंग होती है, चाहे जो लोग हमसे अटैच्ड होते हैं, या जो सोसाइटी, कम्युनिटी या दुनिया कोई भी मुल्क, सूबा जिसमें हम रह रहे होते हैं उसकी वेल-बीइंग के लिए होती है, और वो चाहे कोई भी छोटी से छोटी चीज़ भी हो. अब एज ए लीडर योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ टू क्रिएट दैट वेल-बीइंग बाय इम्प्रूविंग द एफिशिएंसी. अब एफिशिएंसी क्या चीज़ है? एफिशिएंसी would mean to produce maximum by utilizing minimum resources in minimum time. Say for example, sometimes people come to me and tell me, SF, you had a long day today, and I always tell them, long day? Every day has 24 hours. मेरी ख्वाहिश है कि मेरे पास लंबा दिन हो, 26 घंटे का, 28 घंटे का, but everybody has 24 hours. Long day कोई डे नहीं होता. आपको घंटे उतने ही हर बंदे को मिल रहे होते हैं जितने उसके अंदर होते हैं. हाँ, ये है कि आप उन घंटों को यूटिलाइज कैसे कर रहे होते हैं, और यहीं पे आपकी एफिशिएंसी जो है वो उभर के सामने आती है. एंड एज ए लीडर योर जॉब इज टू क्रिएट वेल-बीइंग थ्रू इम्प्रूविंग द एफिशिएंसी. नाउ दिस इज डिफरेंट than what we have been learning and propagating and tableeghing in the last 10-20 years of my professional career. Now it all boils down to well-being in the end. Like what you are doing as a leader, any activity which you are doing, whatever you are seeing clearer than the others, you are ultimately rolling towards the well-being of the society and well-being of the mankind and well-being of the people, the family, everybody around you. और even आज के दौर में हम planet की बात भी करते हैं, well-being of this planet, इसको भी सेव करने की बात करते हैं. सो एज ए लीडर आपको अपनी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने की ज़रूरत होती है. अब वो एफिशिएंसी मैं खुद काम करके अपनी बढ़ा सकता हूँ, वो एफिशिएंसी मैं अपने लोगों के थ्रू से बढ़ा सकता हूँ. जब मुझे कोई कहता है कि यू हैड अ लॉन्ग डे, तो मैं उस लॉन्ग डे को छोटा कैसे किया जा सकता है? बाय इम्प्रूविंग द एफिशिएंसी. एंड हाउ डू यू इम्प्रूव द एफिशिएंसी? बाय यूटिलाइजिंग little material and doing things in a shorter period of time and getting it done through the others, so you don't have to worry about having lesser hours, so you can utilize your available hours to get maximum out of it. अब एक जो हमारे पास जो टाइम है, हमारे पास एक लाइफ टाइम है जिसके अंदर हमने रहते हुए अपना काम करना है, और उस लाइफ टाइम के अंदर ही हमें डिलीवर करना है. और एक अच्छा लीडर वो है जो कि कम्युनिटी की या दुनिया की वेल-बीइंग के लिए या सोसाइटी की वेल-बीइंग के लिए अपने लाइफ टाइम के अंदर एक अच्छा काम कर जाता है. सो अगर मैं इस सारी चीज़ को सम अप करने की कोशिश करूं, जिसको मैंने काफ़ी बिखेर दिया है, तो मैं ये कहता हूं कि जो भी एक लीडर कर रहा होता है, जो भी वो देख रहा होता है, इन दी एंड वो सारी लीडरशिप एक तरफ इकट्ठी करके और वो सारा काम जो वो कर रहा होता है, वो सारा काम वेल-बीइंग के लिए कर रहा होता है. यही वो वजह है कि आज के दौर में रहते हुए हम अगर हम पीछे जाके हिस्ट्री में देखें तो लोग तब भी खुश थे जब वाईफाई नहीं था. लोग तब भी खुश थे जब लोगों के पास गाड़ियाँ नहीं थी. मैं तब भी खुश था जब पाकिस्तान में होंडा सिटी चलाता था. मैं आज भी खुश हूँ, ठीक है. तो मैं तब भी खुश था जब मेरे पास जॉब नहीं थी. मैं आज भी खुश हूँ. लेकिन इन अ बिगर पर्सपेक्टिव इफ यू लुक एट, तो हिस्ट्री में भी लोगों ने जो काम भी किया है वो वेल-बीइंग के लिए ही किया है. किसी ने पेनिसिलिन बनाई तो वेल-बीइंग के लिए बनाई. किसी ने पहिया ईजाद किया तो वेल-बीइंग के लिए किया.
किसी ने जहाज़ बनाया तो वेल बीइंग के लिए किया. लग्जरी केम लेटर इनटू दिस. ओके, लेकिन अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ लीडरशिप इज़ टू क्रिएट वेल बीइंग. तो अब जब वेल बीइंग की बात होती है मुझे याद आ गया, एक वाक़या आपको सुनाता हूँ. मैं लम्स में एक दफ़ा एक कोर्स कर रहा था, ब्रांडिंग पे वो कोर्स था, और मैं 93 रैंक्स की कंपनी के अंदर काम कर रहा था उस वक्त. और वहाँ पे जिन लोगों के साथ मैं इंटरेक्ट कर रहा था वो नेस्ले थी, वहाँ पे कोक थी, वहाँ पे पेप्सी थी, वहाँ पे सैमसंग थी, 5-6 और बिग कंपनीज थी. तो फार्मास्यूटिकल्स बैकग्राउंड का मैं ही एक बंदा वहाँ पे मौजूद था. तो उस बंदे ने, जो कि नाम नहीं लेता मैं, उसने मुझे कहा यार फार्मास्यूटिकल के लोग क्या करते हो यहाँ पे, तुम लोगों का क्या काम ब्रांडिंग के अंदर, तो तुम लोग तो वही अपनी टारगेटिंग और सेगमेंटेशन और उसके अंदर लगे रहते हो. और वो तो ब्रांडिंग कोर्स हो रहा था, तो उसके अंदर वो फंक्शनल ब्रांडिंग और इमोशनल ब्रांडिंग और कल्चरल ब्रांडिंग, यस, वो भी करवाने की कोशिश कर रहे थे. तो ऑब्वियसली हमारे यहाँ फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग के अंदर तो मार्जिन ही नहीं है फंक्शनल ब्रांडिंग से बाहर जाने का. लोग करते हैं थोड़ी बहुत इमोशनल ब्रांडिंग भी. तो मुझे याद है मैंने उसको उस वक्त भी यही कहा था. मैंने कहा था भाई साहब बात सुने, आपकी बात बिल्कुल सही है, मेरा कोई काम नहीं है यहाँ पे, ये आप लोग बड़े बड़े FMCG के लोग हैं, मैं छोटी सी एक फार्मास्यूटिकल कंपनी से आया हूँ, लेकिन जो आप कर रहे हैं वही मैं भी कर रहा हूँ. एंड वी आर ऑल वर्किंग टुगेदर टुवर्ड्स द वेल बीइंग ऑफ द सोसाइटी. So well-being of the society at that time, when I answered this question, why I was a witty guy, so I created an answer to shake him off, because वो जो थे मेरी जान नहीं छोड़ रहा था. तो मैंने उसको ऐसा जवाब दिया कि उसके बाद मैंने उसको कहा हो सकता है कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो सोसाइटी की वेल-बीइंग के लिए ज़्यादा बेहतर है, बजाय ये कि मैं कोक बेचूँ. तो आज जब मैं इस मौजू पे बात कर रहा हूँ और वेल-बीइंग पे बात कर रहा हूँ, तो ये वाक़या मुझे याद आ गया. तो मैं इसको सम अप करूँ तो ये कहूँगा कि लीडरशिप की क्वालिटीज़, वो सारी क्वालिटीज़ जो हैं वो मैं समझता हूँ देयर आर राउट्स एंड मैकेनिज्म टू बिकम ए लीडर, जिनके बारे में हम आज तक बात करते रहे कि जी कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, उसकी EQ अच्छी होनी चाहिए, IQ अच्छा होना चाहिए, कैरिस्मेटिक होना चाहिए, उसको पीपल केयरिंग होना चाहिए. दीज आर ऑल राउट्स टू बिकम ए लीडर. टू मी number 1 is if he is able to see the invisible. Number 2, when he gets there, he should definitely be able to see things clearer than the others and do things better than the others. Number 3 ये है कि उसको his life should be beyond himself. उसको दूसरों के लिए काम करना चाहिए और अपने आप के बारे में कम सोचना चाहिए. और ये आप वक्त के साथ सीख जाते हैं, आपके अंदर होता है if you are a natural leader, otherwise you will never learn it. And the last thing, which is the most important thing, is that whatever you are doing, by seeing clearly the things which others cannot see, by going beyond your personal life and being able to do things better than the others and improving the efficiency and being more effective, ultimately the goal of leadership is the well-being of the society, the community, the people you are interacting with, and of course this planet too. So that's my message to all of those who just want me to talk about leadership. This is my way of looking at leadership. You can have your own way of leadership, and every way of looking at leadership is the right way of looking at it, but this is my way of looking at it, and I hope that you like it. Thank you very much. वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है. Thanks for staying with me. Good night, guys.